आपको एक उदय प्रकाश साहब की नज़्म सुना देता हूँ। आदमी जब मर जाता है तो आदमी कुछ बोलता नहीं। आदमी जब मर जाता है तो आदमी कुछ सोचता नहीं। आदमी जब कुछ बोलता नहीं, आदमी जब कुछ सोचता नहीं, आदमी मर जाता है। Hello and welcome to the Indian Writers Forum. Today we have a very special guest with us. We have Danish Husain, and as you can see I have more or less barged into his performance space. I'll be asking a few questions to him and we'll be discussing several things. First of all, Danish, I'd like to begin with a little bit of the past. What happened in 2015? You returned your Yuva Puraskar to the Sangeet Natak Academy, and along with you there was one more theatre practitioner, Maya Rao, who returned her award. Could you rephrase that time for us, rewind that time for us? What did you go through? What happened? And B, theatre has always had a very contentious relationship with power, right from the times of pre-independence to the after we got our independence. Did you feel lonely in the there were so many writers and there were just the two of you and probably several others as well? Well, I mean, I really can't see why not many theatre artists returned their Sangeet Natak Academy Awards and why it was just the two of us. Because it's really for them to say that. I mean, I don't know why, but there's no comment on that. The fact I would not say that returning the award is the only gesture of protest. I'm sure a lot of people have their own ways of registering protest. So I really don't know as to why there were so many writers and poets who were doing it, but not so much of theatre artists and performing artists in that sense. But I remember that it was a period of we had the Bolkar had already been killed, and I remember Professor Kalburgi was killed. It was August 2015, and there was this growing apathy towards intellectuals and towards this kind of thinking, scientific, rational thinking. And somehow it just didn't matter, because the way things get amplified is when you hear about that in media, and if media talks about it, because that's really when it gets amplified. And you would find that it wasn't of much interest to people as to these intellectuals were being killed. और उदय प्रकाश साहब जो पोइट, वो पहले शख्स थे जिन्होंने अवार्ड अपना वापस किया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे Ashok Vajpayee Sahab and apne Sachidanandan ji, and then it became like a movement, and people started returning their awards. और जब ये हो रहा था तो of course we all were very encouraged by all these great writers and poets, और हम लोग बहुत inspired हो रहे थे. लेकिन वो मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि मेरे पास भी एक पुरस्कार है और मैं उसे वापस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली इतना सोचता नहीं था कि मेरे पास एक पुरस्कार है. बट देन सडनली एक दिन माया राव ने अनाउंस किया कि वो अपना अवार्ड वापस कर रही हूँ, और मुझे तभी ख्याल आया कि अरे अब मेरे पास भी एक संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड है. और फिर मैंने भी एक अपना टोकन प्रोटेस्ट रजिस्टर किया. और ये इसलिए नहीं कि क्योंकि मैं भी एक प्रोटेस्ट करना चाहता था, ये इसलिए कि एक ऐसा माहौल बन रहा है जहाँ पे धीरे धीरे लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो अगर बात कुछ खुल के कहेंगे या किसी एक धारा के ख़िलाफ़ कहेंगे तो उनके ऊपर एक तरह का सेंसरशिप किया जाएगा. और ये ऐसी कोई अब ढकी चुकी बात नहीं है कि मैं कोई ऐसी नई बात कह रहा हूँ. पिछले 3 साल में ये बहुत तरीके से उजागर हो गया कि किस तरह से अंडर हैंड तरीके से लोगों को चुप कराने की कोशिश की गई है. तो आई थिंक ये वो उस वक्त ये मूवमेंट शुरू हुआ था, उस वक्त ये इंटॉलरेंस डिबेट शुरू हुई थी, और बहुत एक नॉवल तरीका निकाला था इन राइटर्स ने और पोइट्स ने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए. क्योंकि मैंने उस वक्त भी यही बात कही थी कि आप ये ना सोचिए कि ये अवार्ड जो है बहुत आसान है वापस कर देना, क्योंकि ज़्यादातर ये जितने आर्टिस्ट होते हैं, राइटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, पूरी ज़िंदगी इनकी निकल जाती है एक अदब क्रिएट करने में, लिटरेचर क्रिएट करने में, और जल्दी कोई रिकग्निशन मिलता नहीं है. इट्स नॉट लाइक कि आप फिल्म स्टार हैं, फिल्म हिट हो गई तो आप सडनली हर जगह सेलिब्रिटी हो गए, पहचाने जा रहे हैं.
राइटर पोइट आदमी होते हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होते हैं, उनको कोई पहचानता नहीं है। तो सालों भर की मुशक्क़त के बाद 15 साल, 20 साल, 25 साल काम करने के बाद कोई एक आदमी कहता है, कोई एक महकमा कहता है कि भाई हम आपकी कदर करते हैं, हम आपको पहचानते हैं और ये हम आपको एक अवार्ड दे रहे हैं। और वो ऐसी कोई बड़ी राशि नहीं होती कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, बट वो टोकन एक राशि जो आपको मिलती है और एक वो प्लाक मिलता है, शॉल मिलती है, तो एक कम से कम आदमी को ये होता है कि चलो किसी ने मुझे पहचाना, मेरे काम की कदर की। और फिर उसी चीज़ को वापस कर देना, तो ये कोई इतना आसान डिसीजन नहीं रहा होगा इन पोइट्स के लिए और राइटर्स के लिए, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए, बिकॉज और इवन फॉर मी फॉर दैट मैटर, कि आपने एक चीज़ हासिल करी बड़े मेहनत और मुशक्क़त के बाद, और अब आप वो कहने कि साहब मैं ये चीज़ नहीं रखूँगा। तो आई थिंक एंड इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ स्टेटमेंट अबाउट, आप जितने आप ये देखते हैं पॉलिटिशियंस हैं भाई, मुझे लगता है कि आप शायद कदर नहीं करते जो आप ऑफिस होल्ड करते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से आ रहे हैं आपकी वैल्यूज़ नहीं ये दर्शा रही हैं कि आप अपने ऑफिस को जो है उसकी कदर करते हैं। तो इसलिए आप जो है वहाँ पहुँच जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, आप दुनिया भर की बयानबाजियाँ करते हैं, जो बयानबाजियाँ आप ही के कॉन्स्टिट्यूशन और आप ही के मुल्क की हिस्ट्री को और कल्चर को अंडरमाइन कर रहा है। तो मैं सोचता हूँ भाई कि अगर कोई आदमी मिनिस्टर बन रहा है तो वो मिनिस्टर बन रहा है तो वो इस बात की कदर करेगा कि मैं मिनिस्टर हूँ और मैं एक ऐसी कैबिनेट रैंक पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ से कोई बयानबाजी कर रहा हूँ तो कोई गैर जिम्मेदाराना बयान ना दूँ। लेकिन इस तरह की बयानबाजियों से तो यही साबित हुआ ना कि आप इसकी कदर नहीं करते। लेकिन हम जिस अवार्ड की कदर करते हैं हम उसको वापस करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे बेकदरे लोग ही हमारे ऊपर बैठे हुए हैं तो हमें इनसे अवार्ड नहीं चाहिए। हम अवार्ड के लिए काम नहीं करते हैं, हम काम करते हैं अपने आर्ट के लिए। हमें मज़ा आता है ये कहानियाँ सुनाने में, हमें मज़ा आता है नाटक करने में, हमें मज़ा आता है किताबें लिखने में और कविताएं लिखने में और उनको सुनाने में, और वो आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकता है। अवार्ड एक प्रमाण आप दे रहे हैं, सरकार दे रही है, लेकिन अवार्ड हमें नहीं डिफाइन करता है। राइट, ये बहुत ज़रूरी बात आपने कहा दानिश। एंड द अदर पॉइंट दैट यू मेड कि दिस इज़ नॉट द ओनली वे, सो वी मस्टंट ऑल्सो सेंशियर पीपल कि आपने क्यों नहीं दिया। बट आपका जो काम है, आप जैसे इनफैक्ट आपको वो पुरस्कार मिला था फॉर रिवाइविंग द 18th to 19th सेंचुरी उर्दू फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग कॉल्ड दास्तान गो। जब आपने शुरू किया था ये काम, तब आई डोंट थिंक देयर वाज सच एन अटैक ऑन उर्दू इन द सेंस कि इंस्टीट्यूशनली गवर्नमेंट से कोई पॉलिसी जा रहा है अगेंस्ट एनी लैंग्वेज। तो जब आप पहले काम शुरू किया था तो शायद उसका एक अलग सा बैकड्रॉप था। How do you, when you perform this now, do you think I don't think it was so black and white. Okay. Because जब ये मुल्क बना 47 में, तो एक तरह से ये एक डिवीज़न हो गया कि ज़बान जो है उर्दू वो अलग ज़बान है, औरों की ज़बान है, और ख़ासकर क्योंकि पाकिस्तान ने उसको अडॉप्ट कर लिया और उसको अपनी नेशनल लैंग्वेज बना दिया, तो एक तरह से इट समवेयर इन द कॉन्शियसनेस दिस थिंग हैज़ बीन ड्रिल्ड दैट दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ द अदर। तो ये उर्दू ज़बान का जो निगलेक्ट है वो कोई ऐसा 3 साल का काम नहीं है कि मैं कहूँ कि खाली इस सरकार का काम है। उर्दू ज़बान इस मुल्क में 70 साल से निगलेक्ट हो रही है, और एक तरह से स्टेट ने उसको निगलेक्ट किया है। कहने को तो बहुत सारी प्रमोशनल स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, हर यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट्स हैं, ये हैं, बट ऐसा आपने जो मेन माध्यम है वहाँ से उर्दू को हटा दिया। तो उर्दू ज़बान जब तक आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी ज़बान की अपनी रोज़ी कमाने के लिए, जब तक वो तो क्या हुआ कि उर्दू की लिपि जो एक तरह से हट गई। लेकिन पॉपुलर कल्चर में, क्योंकि हिंदुस्तानी सिनेमा काफ़ी अरसे तक उर्दू सिनेमा था, ऑलमोस्ट लेट 80s अर्ली 90s, और उसकी वजह भी ये है कि हिंदुस्तानी सिनेमा में जितने भी बड़े बड़े राइटर्स और पोइट्स इन्वॉल्व थे वो सारे उर्दू के बहुत बड़े लिटरेरी ऑर्स थे। तो अगर जैसे अब मजरू सुल्तानपुरी साहब हुए, साहिर लुधियानवी साहब हुए, कैफ़ी आज़मी साहब हुए, डॉक्टर राई मासूम रज़ा साहब हुए, अख्तर उल ईमान साहब हुए, अगर ये लोग एक फ़िल्म नहीं लिखते, एक गाना नहीं लिखते, तो भी जो उनका मकाम उर्दू और हिंदी अदब में 20वीं शताब्दी में इस मुल्क में है, वो मकाम उनसे कोई छीन नहीं सकता था। ये लोग इतने बड़े स्टालवर्ड्स थे। ये तो हिंदी सिनेमा की खुशकिस्मती है कि इन लोगों ने हिंदी सिनेमा में आके काम किया और वहाँ पे फिल्में लिखी और गाने लिखे जो इतने मकबूल हुए। तो इन लोगों की सेंसिबिलिटी की वजह से पॉपुलर कल्चर में ज़बान बाकी रही, जो धीरे धीरे अब वो भी उड़ गई है। तो निगलेक्शन तो उर्दू का बहुत पहले से चल रहा है। पर ये था कि पिछले कई सालों में जो एक तरह की कड़वाहट आ गई है, एक तरह की जो बिगेटरी सामने खुल के आ गई है, ये पहले इतनी नहीं थी, और लोग जो थे ज़्यादा ओपन थे टू आइडियाज़। तो एक तरह की जो ये क्लोजनेस हो रही है कि हम बंद कर रहे हैं हर चीज़ को, और हर चीज़ को एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूड दिस, एक्सक्लूड दैट,
और एक बहुत ही डिफाइंड स्ट्रेट जैकेटेड इंटरप्रिटेशन हो रहा है हिस्ट्री का, कल्चर का, कि बस यही है, बाकी सब कुछ बाहर है। तो ये बड़ा एक नाइव सा वर्जन है, ऐसा कोई होता नहीं है, क्योंकि कोई गोल्डन पीरियड ज़िंदगी में, ज़माने में कभी नहीं था दुनिया में। ऐसा कोई वक्त नहीं था कि बस वो एक फिक्स चीज़ थी और उसके बाद सब डिटोरिएट हो रहा है। हम हमेशा ऐसे ही थे। ह्यूमैनिटी वॉज ऑलवेज इन फ्लक्स, हिस्ट्री वॉज ऑलवेज इन फ्लक्स, कल्चर वॉज ऑलवेज इन फ्लक्स। हमेशा हज़ार कॉन्ट्रडिक्टरी फोर्सेस उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। कोई पुल है, कोई पुश है, कोई अपनी तरफ खींच रहा है, और ज़माना ऐसे ही चलता है। तो ऐसा कोई स्टैटिक फिक्स डिफाइंड गोल्डन पीरियड कभी नहीं था। ये कहने की बात है। हर ज़माने में इंसान तो इंसान ही है ना, तो इंसान उस ज़माने में भी जो था अपने अपने मफाद, अपने अपनी सेल्फिश, अपने अपनी ग्रीड के हिसाब से काम कर रहा था। तो इस ज़माना ऐसे ही चलता है। अगर आप फ़ौरन कहें कि साहब इसको निगलेक्ट कर दो और इसको एक्सक्लूड कर दो, और यही एक डिफाइंड वर्जन है, सो आई थिंक इट्स बीइंग स्लाइटली बीइंग नाइव एंड इट डजंट वर्क लाइक दैट। राइट, आई मीन द यूपी कल्चर मिनिस्टर कैन से एनीथिंग, बट लोग तो ताजमहल लाइक आपका उस लीफलेट में रहे या ना रहे, people will go and see because there's something in the art form itself जो कि which is beyond say governments and statements. I'd like to talk specifically about your form, your art form. You are obviously dealing with a language which is a little defamiliarized to your audience, even if you're performing it in Delhi or Lucknow, like I'm not talking about places से आप कहीं बैंगलोर में जाके परफॉर्म कर रहे हो या कहीं और जाके, but even in play, but it's a little defamiliarized. तो आप कैसे ये, how do you bridge that communication gap that might exist? भाई देखिए, ज़बान का बड़ा अजीब खेल है कि आपको लगता है आपको ज़बान नहीं आती, पर ज़बान जो है आपकी कॉन्शियसनेस में इतना एम्बेडेड है कि जब आप करने लगते हैं तो लोग कहते हैं हाँ मैं तो समझ में आया। अब मैं ये कहता हूँ कि जब अंग्रेज़ी पिक्चर लोग देखने जाते हैं हॉलीवुड में, तो कौन ये दावे से कह सकता है कि उसे 100% कॉम्प्रहेंशन है। अगर सबटाइटल्स नहीं आए स्क्रीन के ऊपर, आप सबटाइटल्स हटा दीजिए और एक कोई हॉलीवुड की फिल्म अगर आप चलाइए, तो कौन ये दावे से कह सकता है कि मुझे 100% हर चीज़ समझ में आ गई। तो ज़बान का खेल ये है कि आप दिमाग जो है, आप जब सुनते हैं तो इट जस्ट पिक्स व्हाट इज़ फेमिलियर, और बाकी जो मिसिंग होता है वो दिमाग खुद उसे एक्स्ट्रापोलेट करके, इंट्रापोलेट करके, इंटरप्रेट करके मफहूम को, कंटेंट को समझ लेता है। तो उर्दू ज़बान का ये कि लोगों को लगता है कि हमें उर्दू नहीं आती, लेकिन एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं वो उर्दू है। जैसे कि जावेद साहब का एक बहुत मशहूर स्टेटमेंट है कि जब तक आपको समझ में आ रही होती है आप उसे हिंदी समझते हैं, जैसी समझ में नहीं आती आप कहती हैं उर्दू है। तो ये एक कहने की बात है कि ज़बान समझ में नहीं आती। ज़बान, अभी मैंने आपके सामने इतनी मुश्किल उर्दू में कहानी सुनाया, और मुझे नहीं लगता कि किसी के सुनने या कॉम्प्रिहेंशन में आपके ऑफिस में, हालांकि मैंने शुरू करने से पहले ये सवाल किया था कि किसी ने ये परफॉर्मेंस देखी है या कुछ जानता है, तो सब ने यूनानिमसली कहा कि नहीं। लेकिन जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो मुझे नहीं लगा कि किसी के कॉम्प्रिहेंशन में कुछ मुश्किल हो रही थी, और आफ्टर अ व्हाइल इनफैक्ट एवरीबडी सीम्ड वेरी इन्वॉल्व्ड विद द परफॉर्मेंस। तो वो ऐसी मुश्किल नहीं आती है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि पहले क्या होता था कि चीज़ें, कहानी हमेशा एक मिलियू में पनपती है। तो पहले जब कहानी सुनाई जाती थी तो लोग जानते थे कैरेक्टर्स क्या हैं, लोग जानते थे कहानी क्या है, तो आपको उनको समझाना नहीं पड़ता था कहानी क्या है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि साहब रामलीला चल रही है, आप 7वें दिन पहुँचे रामलीला देखने और आपने देखा लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं स्टेज पे। अब आप बगल वाले से नहीं पूछते भाई पहले क्या हुआ था, 6 दिन पीछे क्या हुआ, आपको घुसते ही समझ में आ जाता है लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, आप कहानी वहीं से पकड़ते हैं और आखिर तक बैठे रहते हैं। दैट इज़ बिकॉज दी स्टोरी स्टिल अलाइव इन आवर कल्चर, क्योंकि वो हमारे कल्चर में अभी अलाइव है, जिंदा है, तो इसलिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहानी समझ जाते हैं। दास्तान अमीर हमजा और तिलिस्म होशरुबा के साथ ये नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि हमें थोड़ा प्रियम्बल देना पड़ता है, थोड़ा समझाना पड़ता है, पहले कहानी को पैराफ्रेज करना पड़ता है, उसको सिंपल करके समझाना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि लोग पकड़ लेते हैं कहानी को, और उसके बाद फिर जब आप असली कहानी वो पर्शियनाइज्ड उर्दू वर्ड्स के साथ सुनाते हैं तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनको मैटर मालूम है कि क्या हो रहा है। इट्स जस्ट लाइक वॉचिंग अ शेक्सपियर प्ले, कि आपने शेक्सपियर का प्ले उसको हिंदी में अडेप्ट कर लिया और आपने उसको किया। अब आप किसी को मकबूल फिल्म दिखा रहे हैं विशाल भारद्वाज की, या ओंकारा फिल्म दिखा रहे हैं, या हैदर दिखा रहे हैं, तो आप सिर्फ अंग्रेज को ये कह दीजिए भाई ये शेक्सपियर का हैमलेट प्ले, तो अब उसको एक उर्दू समझ में नहीं आएगी या हिंदी समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो क्योंकि स्टोरी जानता है, कैरेक्टर जानता है, तो वो मफहूम को पकड़ लेगा, मैटर को कहानी समझ जाएगा। तो वो ये हमारी कोशिश रहती है कि लोग जो हैं कहानी पकड़ लें, और उसके बाद फिर जहाँ भी हो सकता है हम थोड़ा ग्लॉस कर देते हैं, कोई एक आध शब्द का मतलब बता देते हैं, अपने हाव भाव से कुछ बता देते हैं, तो उससे क्या होता है कि ज़्यादातर मैटर जो है ऑडियंस तक पहुँच जाता है।
मुझे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू आप आज आपने क्या किया है, बट with respect to performances, your performances in general, you give very contemporary political messages, लेकिन आपका स्टोरी सेट होता है किसी 19th सेंचुरी में। तो कोई डायरेक्टली आके आपको ये नहीं कह सकता कि आपने इसके खिलाफ कुछ कह दिया या बट आप कह रहे हैं वो परफॉर्मेंस में, और वो कुछ सीरियसली नहीं कह रहे हैं, आप बहुत ही मतलब just as it should be in a performance, people are enjoying what they're listening to. So is that a conscious choice? Well, to begin with, it wasn't a conscious choice. होता क्या है कि हम खासकर जो यूपी के बिहार के लोग होते हैं और जो हिंदी उर्दू ज़बान बोलने वाले लोग हैं, इन लोगों में थोड़ा पैनापन ज़्यादा होता है ना, कटाक्ष मारने में बहुत आगे रहते हैं, हमेशा फ़ौरन आलोचना करने लग जाएंगे, तंज मारने में, ये ज़रा उस ज़मीन की ये एक खासियत है। आप ज़रा किसी भी उर्दू वाले या हिंदी वाले से मिलिए यूपी और बिहार से, वो तेज़ किस्म के लोग होते हैं और फ़ौरन, तो इसीलिए पॉलिटिक्स जो है वो हर आदमी कहते हैं कि यूपी बिहार वाला जो है वो पेट में पॉलिटिक्स लेके पैदा होता है। तो ये एक फितरत है, हम जहाँ जिस माहौल से आ रहे हैं वहाँ पे लोग नॉर्मली ज़रा विट का इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं, असाइड्स बहुत होते हैं, हर चीज़ पे एक कमेंट होती है, एक टिप्पणी होती है, एक आलोचना होती है, ये हमारे कल्चर का पार्ट है। वी आर दैट काइंड ऑफ पीपल, यू नो। अगर आप देखें तो ज़्यादातर हिंदुस्तानी जो है, हर आदमी की हर चीज़ पर राय होती है और हर आदमी अपनी राय जो है बड़े विटी तरीके से पेश करना चाहता है। तो दिस इज़ एम्बेडेड इन आवर कल्चर। So when I started performing and I started giving these asides during the story, it wasn't really a conscious choice. But after a while, I realized that I can use it very effectively. Then I started making my conscious choices, and I would make, so what I would kind of quietly slip in a comment about this and that, और जैसे कि suddenly एक contemporary view जो है वो ऑडियंस तक पहुंच जाए। दूसरा उसका ये है कि दो इट इज़ ऑल्सो माई पॉलिटिक्स ऑफ स्लिपिंग इट असाइड, बट आई ऑल्सो यूज इट एज अ परफॉर्मेंस ट्रोप। अब क्या है कि मैं एक पुरानी कहानी सुना रहा हूँ साहब, जिसमें राजा का नाम नहीं मालूम आपको, विलेन का नाम नहीं मालूम आपको, कहानी की सेटिंग नहीं मालूम आपको, बाकी सब कुछ उर्दू में चल रहा है। तो अब आप जो है, हाउ डू यू प्रोवाइड अ पेग टू द ऑडियंस सो दैट दे कैन होल्ड ऑन टू द पेग एंड दे कैन मूव अलॉन्ग विद यू टू द स्टोरी। तो अब आपने उनको एक इतनी पहाड़ ऊंची कहानी दिखा दी, अब वो पहाड़ पे चढ़ना भी तो है ना भाई, तो आप उनको चढ़ने के लिए हाथ पैर कुछ पेग्स देंगे ना, तो आपने कुछ एक कंटेम्प्रेरी असाइड किया, सडनली दे कैन मेक अ कनेक्शन टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम। Suddenly it becomes about their lives. Suddenly it becomes about something familiar, because storytelling, or in that sense anything that we do, works with familiarity. भाई आप दूसरे मुल्क में जाते हैं, जैसे ही आपको कोई हिंदुस्तानी दिखता है फौरन उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जैसे ही आपको कोई अपनी ज़बान बोलने वाला दिखता है आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जैसे ही आपको कोई अपने जैसा कपड़ा पहना हुआ नज़र आता है तो आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो वी काइंड ऑफ लुक फॉर फेमिलियरिटी, और फेमिलियरिटी ये जो है वो हमको वहाँ ले जाती है। तो इसलिए कहानी सुनाते वक्त भी अगर आप एक बड़ी अनफेमिलियर लैंडस्केप को खड़ा कर रहे हैं तो उसमें आपने छोटे छोटे एक झंडे लगा दिए जो लोगों को ये एक फेमिलियरिटी दिलवाएं और उनको लगे हाँ ये तो मैं समझ रहा हूँ, ये तो मुझे पहचान में आ रही है, अरे ये तो हमारे साथ होता है, तो वो फौरन आपके साथ हो जाएंगे और फिर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी उनको नेविगेट करवाने में कहानी में। Now, honest question, are you tired of questions on Newton? No, please ask me whatever you want. But I'll ask you a tricky one, not a tricky one. Firstly, I would like to know, like, do you still feel that, like, एक टाइम तक तो एटलीस्ट होता था, मुझे भी बहुत अजीब लगता है if I say, okay, Danish Husain is coming to the audience, कौन है वो? So I must be, like, technically I should be saying, okay, I should be mentioning your work in the theatre, क्योंकि बहुत ज़्यादा सालों से आप कर रहे हो. But you know, this thing is always there कि the moment you grab some kind of a mainstream film, or I don't know if I can call it a mainstream film, but at least it can reach a larger audience than your particular shows can. Do you still feel as an actor in this country, do you still feel that that divide is still there between theatre actors and वो लाजिम है, वो रहेगा, because cinema is a mass media thing और that thing you can't bridge क्योंकि उसकी रीच इतनी ज़्यादा है। आप एक फिल्म करते हैं और उसके साथ 1500 थिएटर में प्रिंट्स निकल रहे हैं, और अगर मान लीजिए एक थिएटर में भी 300 लोग बैठते हैं या 500 लोग बैठते हैं तो 500 into 1500 people are watching it in one show. And if it is running over 2 weekends or 3 weekends and there are, let's say, some 20 shows in a week, so you know the aggregator is so high कि आपका नंबर अगर फिल्म आपकी हिट हो गई तो 3 हफ्ते में आपको लाखों करोड़ों लोग देख लेते हैं मुल्क में, प्लस उसके अलावा सिनेमा हॉल के अलावा फिर आप नेटफ्लिक्स पे जा रहे हैं, अमेजॉन पे जा रहे हैं, तो इट्स अ मास मीडिया थिंग, यू कैन नॉट कम्पीट विद दैट।
a live performance is necessarily a very inclusive and a very a very exclusive and a very limited performance. अब मैं एक स्टोरी टेलिंग परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, इंटीमेट सी परफॉर्मेंस, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर हॉल बड़ा होगा 300 का होगा, 400 का होगा, क्योंकि उससे बड़ा अगर हॉल हो जाएगा तो देन मेरी परफॉर्मेंस डिसिपेट हो जाएगी, वो पीछे वाला जो है मुझे देख नहीं पाएगा। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि भाई 150, 200, 250, 300 लोगों का मैक्सिमम हॉल हो, उसके अंदर मैं कहानी सुना रहा हूँ। अब एक वक्त में 300 लोग ही देख सकते हैं ना, और मेरी भी कुछ एक शारीरिक क्षमता है, मैं इससे ज़्यादा शो नहीं कर सकता हूँ। अब महीने में मैंने 10 शो किए मान लीजिए, और हर शो में मैं बहुत खुशकिस्मत रहा, 300 लोग मुझे मिल गए, तो मुझे महीने भर में 3000 लोगों ने देखा। लेकिन मगर मेरी एक फिल्म आ गई और वो फिल्म जो है हिट हो गई, तो मुझे करोड़ों लोग देख लेंगे, तो वो आई कैन नेवर कम्पीट विद दैट। सो अगर आप 2 फिल्म या 3 फिल्म करते हो, वो फिल्में हिट हो जाती हैं और लोग आपको उन फिल्मों से पहचान रहे हैं, तो आई कांट रिजेंट दैट फैक्ट, because that's the way it functions. Because physically I perform in limited spaces and only those people would know about me. तो ये चीज़ रहेगी, और इससे कोई ना ज़्यादा खुशी होने की बात है, ना ज़्यादा नाराज़ होने की बात है। ये तो दुनिया की रीत है भाई, क्या कर सकते हैं। Danish, thank you very much for your time. जी, thank you very much. Danish is actually running a new piece. He's coming back to storytelling after 3 years, I think. No, Danish, one and a half years. 1.5 years, all right. Why don't you tell our audience what this is? तो किस्सेबाजी हमने ये मुहिम शुरू की लास्ट ईयर, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स मुंबई में है, उनका एक हर सालाना एक थिएटर फेस्टिवल होता है सेंटर स्टेज, तो उसमें हमने लास्ट ईयर प्रीमियर किया किस्सेबाजी, जहाँ पे हम मुख्तलिफ़ ज़बानों से कहानियाँ निकाल कर उनको लोगों को सुनाते हैं। तो ना सिर्फ अब हम उर्दू में सुनाते हैं, हम बल्कि और ज़बानों में भी हिंदुस्तान की सुनाते हैं, और हम चाहते हैं कि लोग और ज़बानों में कहानियाँ लेके आएँ और मैं उनको तैयार करूँ, आके ये कहानियाँ सुनाएं। तो इस वक्त हमारे पास एक संस्कृत में कहानी है, एक मराठी में कहानी है, 2 मलयालम में कहानी है, 2-3 हिंदी में कहानियाँ हैं, और उर्दू में कहानियाँ तो मैं सुनाता ही हूँ। और अब जो हमारा नया प्रोडक्शन, मेरी थिएटर कंपनी का नाम है होशरुबा रेपर्टरी, तो होशरुबा रेपर्टरी का जो अगला नया प्रोडक्शन है वो है किस्सा उर्दू की आखिरी किताब का। और इब्न इंशा साहब बहुत बड़े पोएट, सटायरिस्ट, डिप्लोमेट थे, उर्दू ज़बान में शायरी करते थे और सटायर लिखते थे। तो उन्होंने एक बहुत ही मज़ाहिया और सटायरिकल किताब लिखी थी, उर्दू की आखिरी किताब। तो हमने वो किताब को उठाया, और वो किताब हालांकि क्योंकि उन्होंने 70s में लिखी थी, तो थोड़ा उसमें जो उसका मफ़हूम है, कंटेंट है, काफ़ी कुछ जो है वो आज के लोग नहीं समझ पाएंगे, तो हमने उसको रीराइट कर दिया, और हमने कंटेम्प्रेरी जो आज के मौजूदा हालात में हो रहा है, हमने वो उसके बारे में कर दिया। तो हालांकि है उर्दू की आखिरी किताब, और वही फॉर्मेट है, उन्होंने टेक्स्ट बुक फॉर्मेट में वो किताब लिखी थी, तो हिस्ट्री का चैप्टर है, ज्योग्राफी का चैप्टर है, ग्रामर और मैथ्स, मॉरल साइंस का चैप्टर है, तो हम उसी फॉर्मेट, उसी टेम्पलेट को पेश करेंगे, पर काफ़ी कुछ कंटेंट जो इब्न इंशा साहब ने लिखा था वो हमने रीराइट कर दिया है, वो अब बेसिकली हमारा कंटेंट है वो। तो इट जस्ट यूजेस द फ्रेमवर्क, बट द टेक्स्ट काइंड ऑफ इज़ ऑलमोस्ट आर्स। और ये 7 नवंबर को पृथ्वी थिएटर फेस्टिवल होता है बम्बई में, वहाँ पे हम 7 नवंबर को इसका प्रीमियर करेंगे। गोपाल दत्त बड़े शानदार कलाकार हैं, और उन्होंने उनका ही आइडिया था, इनफैक्ट उन्होंने ही मुझसे पहले 6-7 महीने पहले ये बात कही कि क्यों ना हम इसके ऊपर कुछ काम करें, तो मैंने कहा बिल्कुल। तो अब हम दोनों तैयार कर रहे हैं, मैं बम्बई जाऊँगा 2-3 दिन के अंदर, और फिर हम इसको पेश करेंगे, और उम्मीद है कि बहुत जल्द हम दिल्ली आएंगे, और हम दिल्ली में भी इसको पेश करेंगे, और हमें तो बहुत उम्मीद है कि शायद हमारा काम इस बार इतना अच्छा है कि लोग फतवे हम पे जारी कर देंगे। बिल्कुल। Be sure to catch that play when it comes. Make sure that you subscribe to our channel. As Danish was saying, ours is also an independent media. We cannot reach the number of people that, say, corporate-backed media can reach. So we also depend on Danish's time, and he very fortunate that we could have him. Please make sure that you subscribe to our channel. Also, you'll find links to the other interviews we've done on theatre with, say, for instance, Shomik Bontopadhyay on Bangla theatre, Makaran Sate in Marathi, Rajiv Nayak on Marathi theatre, and several others. We'll post the links in the description to this video. Be sure to subscribe. That's all we have for today. Thank you very much. Thank you. Thank you.